हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 23 अगस्त और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे। क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में आज ही के डेट में जो चंद्रयान 3 मिशन है वो सक्सेसफुली लैंड किया था लूनर सरफेस पर। और इसके साथ ही लूनर सरफेस पे लैंड करने वाला भारत फोर्थ कंट्री बन गया था वर्ल्ड का। इसके साथ ही फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर द सदर्न पोलर रीजन। और इसके चलते ही 23 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि हम इस डेट को सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्पेस डे। तो शुरू करते हैं अब आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया और ब्राजील। और आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ऑफ द above mentioned countries conduct 2+2 डायलॉग विद इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ऊपर दिए गए जो डिफरेंट कंट्रीज हैं इनमें से कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ 2+2 संवाद आयोजित करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका आयोजन सभी 5 देशों के साथ किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, the 2+2 meetings signify the participation of two high-level representatives, ministers holding foreign and defense portfolios from each of the two countries, whose aim is to enhance the scope of dialogue between them. So, having such a mechanism enables the partners to better understand and appreciate each other's strategic concern and sensitivities, taking into account political factors on both sides in order to build a stronger, more integrated strategic relationship in a rapidly changing global environment. So, इस डायलॉग की बात करें तो दिस डायलॉग्स आर instrumental in strengthening India's bilateral relations with these nations, covering areas like defense, technology, and security. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What rare astronomical event known as the Sturgeon Moon occurred on 19th of August 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, 19 अगस्त 2024 को कौन सी दुर्लभ खगोलीय घटना घटी जिसे स्टर्जन मून के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं सुपर ब्लू मून, सोलर इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स या फिर मेटियोर शावर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो स्टर्जन मून की जो घटना है इसको ही सुपर ब्लू मून की घटना भी कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, द सुपर ब्लू मून, a rare astronomical event, was visible on 19th of August 2024, marking the first occurrence in nearly a year. And the supermoon happens when the full moon coincides with its closest approach to Earth, appearing larger and brighter in the sky. So it refers to the second full moon in calendar month, a rare event occurring about once every 2 years to 3 years. And the combination of a supermoon with a blue moon is uncommon, with such events happening approximately once every 10 years. So जो next blue moon ऐसा माना जा रहा है कि वो होगा, वो 2037 के बाद ही होगा, उससे पहले इसकी उम्मीद कम की जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With which country did India sign an agreement for its first green ammonia export? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने अपने पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, चाइना, जर्मनी या फिर जापान।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये समझौता हुआ है भारत और जापान के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं, India has signed its first agreement for green ammonia export to Japan, marking a significant step in the green energy sector. So the heads of terms agreement was signed by Sembcorp Industries, Sodi Corporation, Kyushu Electric Power Company, and NYK Line, establishing a green ammonia supply chain from India to Japan. So Sembcorp Industries will produce green ammonia in India. Kyushu Electric Power Company will use it to replace coal in Japan. Sojitz Corporation Limited will facilitate the connection, and NYK Line will handle maritime transport. So Union Minister Prahlad Joshi highlighted the agreement as a historic milestone and a foundation for green energy collaboration. तो आप ध्यान रखेंगे, ग्रीन अमोनिया से संबंधित जो समझौता हुआ है वो हुआ है भारत और जापान के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country will now host the ICC Women's T20 World Cup 2024 after it was originally scheduled to be held in Bangladesh? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, मूल रूप से बांग्लादेश में आयोजित होने वाला जो ये आईसीसी T20 विश्व कप है, इसकी मेजबानी अब कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूएई या फिर ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो अब इसका आयोजन किया जाएगा यूएई में। आप यहाँ देख सकते हैं, यूएई will host the Women's T20 World Cup 2024 in Dubai and Sharjah following the decision to move from Bangladesh due to unrest and travel advisories. So the Women's T20 World Cup has been moved from Bangladesh to UAE due to ongoing civil unrest and protest in Bangladesh. The ICC cited security issues and travel advisories from participating teams as reason for the relocation. तो आप ध्यान रखेंगे, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन अक्टूबर मंथ में किया जाएगा यूएई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which airport has won the Best Airport Award at the India Travel Awards for 3 consecutive years? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, किस हवाई अड्डे ने लगातार 3 वर्षों तक भारत यात्रा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको बताना है कि इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स की तरफ से लगातार तीसरे वर्ष बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जीता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। आप यहाँ देख सकते हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज वन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स फॉर 3 consecutive years, और ये स्थित है हैदराबाद में। So this airport is recognized for its excellence in innovative social media engagement and outstanding airline support, and the award highlights the airport's commitment to quality and its success in various operational aspects. So the India Travel Awards is an annual event that recognizes excellence in the travel and tourism industry. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When did the government of India declare 19th August as Sanskrit Day? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने
19 अगस्त को संस्कृत दिवस कब घोषित किया? आपको वर्ष बताना है कि ऐसा कब किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 1950, 1959, 1960 या फिर 1969। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ऐसा किया गया 1969 में। आप यहाँ देख सकते हैं। So Sanskrit language is believed to be originated in India around 3,500 years ago. And the term Sanskrit is derived from the conjoining of the prefix sam, meaning samyak, which indicates entirely, and krit indicates done. So this day is celebrated every year on the Shravan Purnima, which is the full moon day in the month of Shravan in the Hindu calendar. So in 1969, the government of India declared 19th August as Sanskrit Day to commemorate the 25th 100th anniversary of the birth of Panini, जो कि एक संस्कृत के ग्रामरियन रहे हैं। सो हम अगर 2024 की बात करें तो इस वर्ष ये सेलिब्रेट किया गया है 19th ऑफ अगस्त को, और पिछले वर्ष 2023 में ये सेलिब्रेट किया गया था 31st ऑफ अगस्त को। तो संस्कृत दिवस का कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष जो श्रावण पूर्णिमा होती है उस दिन। और इस वर्ष की थीम है वैदिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। उस क्वेश्चन की ओर। तीस्ता वी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तीस्ता वी जल विद्युत संयंत्र जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं असम, सिक्किम, ओडिशा या फिर बिहार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्थित है सिक्किम में। आप यहाँ देख सकते हैं A landslide recently damaged 6 houses and an NHPC building at the Tista V hydropower station in Sikkim's Gangtok district. So Tista V is a 510 megawatt run-of-river hydropower project on the Tista River with a concrete gravity dam, and the project began in 1999 and became operational in 2008 और इसको डेवलप किया गया था NHPC के द्वारा। सो तीस्ता रिवर की बात करें तो दिस रिवर फ्लोज थ्रू सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। It forms a boundary between Sikkim and West Bengal, and its course includes a deep gorge through the Shivalik hills. आप ध्यान रखेंगे जो तीस्ता वीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसका निर्माण किया गया है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा, और ये स्थित है सिक्किम में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।